So today we are going to start with principles of insurance. Yesterday we have done this, huh? Role of insurance. The main role of insurance is risk management, and there are two broad techniques for managing risk. That is risk control and risk financing. Up to this we have done it yesterday. Now, important principles of insurance. This is very important. Now we will see one by one. Okay, there are 5 to 7 principles which are given for insurance sector. Okay, these are the principles. That means basically जब एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाता है ना इंश्योरर और इंश्योर्ड के बीच में, तो उस कॉन्ट्रैक्ट के साथ साथ कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस जोड़े जाते हैं. Okay, some certain terms and conditions are attached with that particular contract which is made between insurer and insured. So we are talking about those terms and conditions. Okay, that is known as principles. Now see, first is insurable interest. What do you mean by insurable interest? Can you tell me? आपको कुछ आइडिया है? What is insurable interest? See, suppose I'm taking an insurance of my house. Okay, so house will be my subject matter. Do you agree that house will be my subject matter? Yes, And because yes, and because I have invested so much to purchase one house, I have invested a huge amount. Therefore, I have interest in my house. I have I want to protect my house. I want it should go for long, many years till I live, till my family live, right? I want to protect it. So I have interest in my house. No, that interest is known as insurable. And because of that interest, I take up an insurance policy. To protect it, I take insurance policy. And that particular process is known as insurable interest. That particular concept is known as insurable interest. See, in a contract of insurance, it is necessary that the insured means the client, I'm talking about client, not company. Insured must have insurable interest in its subject matter of the insurance. That means whatever property is there, it considers life also. Huh? Suppose I'm taking the life insurance of my parents. So parents will be my subject matter. Parents' life will be my subject matter, and because I have emotional attachment with them, right? So I have interest in my parents. Okay, so because I have emotional interest in my parents, and therefore I take their life insurance policy, and that is known as insurable interest in the subject matter of the insurance. It is essentially a monetary, that is, the loss caused by happening of insured risk must be capable of financial valuation. That means whenever the loss will occur, whenever such incidents will happen, the loss will be, in the monetary terms, the loss will be compensated by the company. Okay, the main conditions to be satisfied for insurable interest are as follows. These are main conditions to satisfy for insurable interest. See, first is there must be a physical object or a subject matter to be insured. Something should be there, no? Something that we can see. Okay, so physical object like car, house, or subject matter like life of a person. So we can see person living on the earth. Okay, the subject matter to be subjected to risk, उसकी लाइफ और उसकी जो ऑब्जेक्ट्स हैं उसके साथ रिस्क अटैच होना चाहिए. हाँ, रिस्क तो सबके साथ ही अटैच होता है ना.
क्या गारंटी है आपने कार खरीदी और कभी चोरी नहीं होगी, कभी आग नहीं लगेगी, कभी एक्सीडेंट नहीं होगा? ऐसी कोई गारंटी होती है? नहीं। जब आप कार खरीदते हैं तो कोई गारंटी देता है कभी एक्सीडेंट नहीं होगा? नहीं, नो ऐसी कोई मैम, गारंटी गारंटी। नहीं होती हाँ, है। मतलब हर एक चीज के साथ रिस्क जुड़ा हुआ रहता है ना? तो सब्जेक्ट मैटर का मतलब जिस चीज का मैं इंश्योरेंस ले रही हूँ उसके साथ रिस्क अटैच होना चाहिए। एंड द रिस्क कैन ऑपरेट ऑन सच ऑब्जेक्ट एंड कॉज डैमेज और डिस्ट्रक्शन। या तो उस मतलब या तो कुछ तो डैमेज का रिस्क होना चाहिए ना उसको, कुछ तो डिस्ट्रक्शन का रिस्क होना चाहिए कि ये टूट भी सकती है, खराब भी हो सकती है, ऑब्सोलेट भी हो सकती है, और एक्सीडेंट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, आग भी लग सकती है, चोरी भी हो सकता है। ठीक है? द पॉलिसी होल्डर मस्ट हैव मॉनिटरी रिलेशन विद द सब्जेक्ट मैटर। अब मेरा मॉनिटरी रिलेशनशिप है सब्जेक्ट मैटर के साथ ना। देखो, हाउस खरीदा तो मैंने हाउस में इन्वेस्टमेंट किया है ना मॉनिटरी टर्म्स में। कार खरीदी है मैंने, ठीक है? बिजनेस के लिए स्टॉक खरीदा, उसका भी इंश्योरेंस होता है बिजनेस के स्टॉक का। फैक्ट्री का इंश्योरेंस होता है। तो मैंने इन सब चीजों में पैसे लगाए हैं। The relationship between policyholder and the subject matter should be recognized by law. Of course, ये law से recognized होना चाहिए. Okay, the insured must stand in the relation to subject matter. Insured, जिस चीज का मैं इंश्योरेंस ले रही हूँ, that he will be benefited by its safety and will suffer by its destruction. यानी कि ऐसा रिलेशन होना चाहिए दोनों के बीच में, सब्जेक्ट मैटर और इंश्योर के बीच में, कि अगर सेफ है तो बेनिफिटेड होगा, और अगर डिस्ट्रक्शन होगा तो कुछ ना कुछ लॉस तो सफर करना ही है। और उसी लॉस की वजह से मैंने इंश्योरेंस लिया है। क्लियर हुआ? जब तक वो सेफ है तब तक मुझे बेनिफिट्स है। दैट ही विल बी बेनिफिटेड बाय इट्स सेफ्टी एंड विल सफर बाय इट्स डिस्ट्रक्शन। समझ आया? और इसी इसी लॉस की वजह से, जो डिस्ट्रक्शन की वजह से मुझे फाइनेंशियल लॉस होता है ना, उस चीज की वजह से ही क्या कहते हैं, मैंने इंश्योरेंस खरीदा हुआ। दिस इज फर्स्ट वन, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो कितना कितना इंटरेस्टिंग है, इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स पढ़ रहे हैं। सो फर्स्ट इज इंश्योरेबल इंटरेस्ट, सेकेंड इज अटमोस्ट गुड फेथ। अब इसका मतलब क्या है, आई विल टेल यू फर्स्ट और उसके बाद में यहाँ पे रीड करूँगी। सी, इसे ना कैविएट एम एम्प्टर बी के नाम से भी जाना जाता है। इसे कहते हैं बायर बिवेयर, यानी कि संभल के रहो, बोलते ना ऐसे, बिवेयर ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। जू में जाते तो लिखा होता ना, ठीक है? तो बिवेयर मतलब संभल के रहो, ध्यान से। ओके, दैट टाइप ऑफ बिवेयर। अब यहाँ पे ऐसे क्यों है, इसको ऐसे क्यों कहा जाता है? सपोज मैंने एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदी, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी मैंने खुद के लिए खरीदी है। अब मुझे ना मुझे सपोज डायबिटीज है और मैंने कंपनी को नहीं बताया, कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट में नहीं बताया। कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ रहता है आपको, कुछ पहले से ही कुछ ट्रीटमेंट चल रही है या पहले से कोई डिजीज है तो आप डिस्क्लोज करिए। तो मैंने सोचा इनको पता तो चलेगा नहीं, तो जाने दो, नहीं बताते, क्योंकि फिर प्रीमियम बढ़ जाता है ना, ज़्यादा डिजीजेस अटैच्ड होती हैं तो प्रीमियम भी ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि लाइफ के साथ रिस्क भी ज़्यादा है। तो कंपनी जब ज़्यादा रिस्क ले रही है आपके ऊपर, तो कंपनी तो ज़्यादा चार्जेस लेगी आपसे। ठीक है? तो मैंने सोचा जाने दो, डायबिटीज़ नहीं बताते। अब आगे चल के जब कुछ भी हो जाएगा मुझे, तो कंपनी क्या करेगी, सारा डिटेक्ट करती है, तब उन्हें डॉक्टर से पता चलता है नहीं तो डायबिटीज़ थी। तो ना, ये जो अटमोस्ट गुड फेथ है ना, ये फॉलो नहीं हुआ। फॉलो नहीं हुआ मतलब, अटमोस्ट गुड फेथ मतलब एक एक तब तब मुझे ना उतना पेमेंट नहीं मिलेगा। आई बात समझ में? मेरी फैमिली को उतना पेमेंट नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि कंपनी कहती है कि कस्टमर ने हमको चीट किया। चीट, गुड फेथ, अटमोस्ट गुड फेथ मतलब हमारे साथ हमको ना पूरा फेथ नहीं था कस्टमर के ऊपर। क्यों नहीं था? बिकॉज कस्टमर चीटेड ऑन अस। जो 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 सच्चाई है वो नहीं दिखाई थी। ऐसा ही सेम होता है कंपनी के साथ। कंपनी कंपनी ना पॉलिसी बेच रही है, तो कंपनी का काम है सारी स्कीम, जितनी भी स्कीम में चीजें हैं वो सब बता दो। एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर है कि नहीं है,
अच्छा फ्री में क्या क्या कवर है, ऐसे नहीं आप कस्टमर को कुछ बताओ ही नहीं और साइन करवा लो उनसे। तो दोनों पार्टीज के बीच में हर जो भी मटेरियल फैक्ट्स होते हैं, मटेरियल फैक्ट्स मतलब इम्पोर्टेंट फैक्ट्स, इम्पोर्टेंट ट्रूथ्स, कुछ भी छुपाना नहीं है। दोनों पार्टीज को एक दूसरे के लिए सब कुछ पता होना चाहिए। मुझे कंपनी के लिए सब कुछ पता होना चाहिए, स्कीम के लिए पता होना चाहिए, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के लिए पता होना चाहिए, जो जो कॉन्ट्रैक्ट में एग्रीमेंट पे लिखा हुआ है वो सब पता होना चाहिए। ऐसे नहीं कंपनी आपसे साइन करवा ले और चीटिंग से कुछ और एग्रीमेंट पे लिखा हुआ है। और सेम वे क्लाइंट को भी अपने फैक्ट्स को डिस्क्लोज करना जरूरी। देखो वही लिखा हुआ है, इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड ऑन utmost good faith. It is a contract of good faith where both the parties of the contract must disclose all the material facts truly and fully. एक तो सच बताना है, ट्रूली बताने हैं, और फुली बताना है, मतलब आधा अधूरा नहीं बताना है, ठीक है, फुली पूरा बताना है। As a general rule, the principle of caveat emptor, let the buyer beware, मतलब इसको caveat emptor के नाम से जाना जाता है, जिसका मतलब ये होता है कि buyer beware. It means, इसका मतलब क्या होता है, that buyer before contracting to purchase anything must satisfy himself as to the nature and the quality of goods he is purchasing. Buyer beware का मतलब ये होता है कि आप खरीदने से पहले, कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने से पहले, यू मस्ट satisfy yourself that the product that I'm purchasing, the policy that I'm purchasing is good for me. तो ये तो सब जानकारी निकालूंगी तब तो पता चलेगा ये गुड है कि नहीं है। So this general rule does not apply to the contract of insurance. Both the parties must disclose, मतलब आपको ये नहीं करना है कि इंश्योरेंस में किसी एक ने सच छुपाया, ये इंश्योरेंस में नहीं होता है, छुपाना इंश्योरेंस में नहीं हो सकता। अगर आप कर रहे हैं तो ये प्रिंसिपल तोड़ रहे हैं। कोई भी प्रिंसिपल, कोई भी लॉ जब हम तोड़ते हैं तो पेनल्टी लगती है ना, बस ये सेम केस है। सो बोथ द पार्टीज मस्ट डिस्क्लोज ऑल द मटेरियल फैक्ट्स रिलेटिंग टू द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द इंश्योरेंस। ठीक है, ओके, इट शुड बी ट्रू एंड फुल इन अ फॉर्म। जो भी आप डिस्क्लोज कर रहे हैं वो फुल होना चाहिए, सच बताना चाहिए आपको, और पूरा सच बताना चाहिए। ठीक है, ये बताया उन्होंने कौन से फैक्टर्स होते हैं जिसके साथ रिस्क अटैच होता है। एज ऑफ अ पर्सन, ज़्यादा एज है तो प्रीमियम भी ज़्यादा होता है। रेसिडेंस, कहाँ रह रहे हो आप, ऐसी जगह पे रह रहे हो जहाँ बहुत केमिकल्स एमिट होते हैं, फैक्ट्री बहुत लगी हुई हैं जहाँ केमिकल्स एमिट होते हैं, इन्वायरमेंट ख़राब है, तो आपकी लाइफ को रिस्क ज़्यादा है। ठीक है, ऑक्यूपेशन आपका क्या है, ठीक है, ऑक्यूपेशनल हेल्थ मीन्स आपका ऑक्यूपेशन है ना ऐसा है, मतलब जैसे आप ऐसी कंपनी में काम करते हो जहाँ पे फर्टिलाइजर्स, केमिकल्स बहुत बनते हैं, तो आपकी हेल्थ पे ज़्यादा, मतलब वो ज़्यादा इंजेक्ट करेगा ना, आपकी हेल्थ को ख़राब करेगा ना। तो आपके ऑक्यूपेशन पे भी डिपेंड करता है कि आपकी हेल्थ फ्यूचर में कैसी होगी, आपकी इनकम कितनी है, ठीक है, उस हिसाब से प्रीमियम डिसाइड होता है। ये सारे फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर डिसीजन लिया जाता है कि कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या चीज़ें डालनी है। ठीक है, इतना सबको समझ में आया, क्लियर है, तो आगे बढ़े। यस मैम। यस मैम। अब थर्ड पे आ जाओ, प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगर नहीं समझेगा ना तो प्लीज लेट मी नो सो दैट आई कैन रिपीट इट वंस अगेन, but I'm trying my best to keep it as simple as I can. ठीक है, प्रिंसिपल्स ऑफ इंडेमनिटी। आप पहली बात तो ये समझ लीजिए कि इंडेमनिटी सिर्फ और सिर्फ जनरल इंश्योरेंस में फॉलो होता है। कहाँ फॉलो होता है? जनरल इंश्योरेंस, मतलब लाइफ इंश्योरेंस में ये वाला प्रिंसिपल एप्लीकेबल नहीं होता। पहले तो आपको ये जानना है। अब जो भी मैं बोलूंगी वो सब जनरल इंश्योरेंस के लिए बोलूंगी अभी इस प्रिंसिपल के बारे में। अब इसका मतलब क्या होता है?
इसका मतलब ये होता है, पहले मैं आपको इसका मतलब बता देती हूँ, फिर ऑफिशियली हम लोग जो टेक्निकल वर्ड्स दिए हुए वो हम रीड कर लेंगे। प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी का मतलब होता है जब नुकसान हुआ तब आपको कॉम्पेंसेशन दिया जाएगा, अगर नुकसान नहीं हुआ कॉम्पेंसेशन नहीं दिया जाएगा। तो आप मुझे बताएंगे इसका मतलब क्या है? अभी जो मैंने कहा उसका मीनिंग क्या है? जब लॉस होगा you will be paid, you will be compensated, you will be indemnified. But if loss does not occur, you will not be compensated. इसका कोई एग्जाम्पल बता सकते हैं? यस, कोई एक एग्जाम्पल बता सकते हैं? Come on, tell मैम me. अगर हम लोगों ने शायद फायर इंश्योरेंस लिया होगा, Exactly. Yes. फैक्ट्री में फायर इंश्योरेंस लिया होगा, अगर उसमें मतलब फायर नहीं हुआ है, अगर उसमें सिर्फ मतलब अर्थक्वेक आया है तो हमको वो इंश्योरेंस का नहीं मिलेगा पैसा। फायर नहीं हुआ है ना, तो वो हाँ, इंश्योरेंस का पैसा नहीं मिलेगा, वेरी गुड। बिकॉज या हम फिर लोग ने अर्थक्वेक फायर को का भी लिया है, छोड़ दो, अर्थक्वेक का अर्थक्वेक नहीं भी लिया। छोड़ दो। हाँ, वेरी गुड, ये भी अच्छा एग्जाम्पल है। आप अर्थक्वेक को भी छोड़ दो, कुछ भी नहीं हुआ, फैक्ट्री में कुछ भी नुकसान नहीं हुआ, ठीक है, आपने साल भर का इंश्योरेंस लिया था। वेरी गुड। किसने बताया? हु टोल्ड? प्रियंका गुप्ता। प्रियंका, वेरी गुड, ग्रेट जॉब प्रियंका, वेरी वेरी गुड। इसका मतलब क्या है? सपोज मैंने फैक्ट्री का इंश्योरेंस लिया था, प्रियंका के हिसाब से फायर इंश्योरेंस लिया था। अब पूरा साल भर का इंश्योरेंस था मेरा, 1 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट था। अब इस 1 ईयर में फैक्ट्री को कुछ भी नहीं हुआ, बढ़िया, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। हम तो यही चाहते हैं मेरी फैक्ट्री को नुकसान ना हो, यही तो इंटरेस्ट होता है। इंश्योरेबल इंटरेस्ट का मतलब है हम चाहते हैं हमारी चीजों को नुकसान ना हो, इसी को कहते हैं इंश्योरेबल इंटरेस्ट। अगर हो गया तो मुझे नुकसान हो जाएगा और उसको कॉम्पेंसेशन के लिए हम इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं, ठीक है, चलो ये तो समझ गए। लेकिन अगर नुकसान नहीं हुआ, फैक्ट्री का फायर इंश्योरेंस लिया बट था। मैम, हाँ, बोलो बोलो। हेलो हाँ अंकिता, बोलो बेटा, अंकिता बोलो। मैम, कोई लोग खुद से ही भी अपना, यस मैम, एम आई ऑडिबल? यस यस, यू आर ऑडिबल बेटा। मैम, मैंने पीपल मतलब खुद से ही उन लोग अपनी कंपनी को आग लगाते हैं, मतलब फायर करते हैं, खुद से हाँ, नुकसान पहुंचा। तो यही तो अटमोस्ट गुड फेथ है ना, यही तो अटमोस्ट गुड फेथ है कि आपको चीटिंग नहीं करनी है। अगर आपने खुद से किया ना तो कंपनी पूरा जानकारी निकालती है कि आग लगी कैसे। कंपनी भी देखो, कंपनी में जो एक्सपर्ट्स है ना वो ऐसे ही नहीं बैठे हैं। कंपनी जो एक्सपर्ट्स को पेमेंट करती है ना कि आप जाके पूरी जानकारी निकाल के और रिसर्च करके आओ कि ये आग कैसे लगी, और अगर अगर वो सेटिस्फाइड होंगे ना कि आग वाकई में नेचुरली लगी है, तो तब जाके इंश्योरेंस कंपनी आपको पैसा देती है। पहले तो पूरा हफ्ता भर, 10 डेज तो पहले पूरा रिसर्च किया जाता है कि आग लगी कैसे, और अगर प्रूफ मिला कि नेचुरली आग लगी है तब जाकर आपको पैसा देती है कंपनी। आई बात ओके मैम। समझ में आपको? आपने जो डाउट पूछा ना वो ये सेकंड प्रिंसिपल है, अटमोस्ट गुड यस मैम। फेथ। हाँ, मतलब चीटिंग नहीं करनी है। कोई भी आपने चीटिंग करी तो ये प्रिंसिपल तोड़ा, जब ये प्रिंसिपल तोड़ेंगे तो कंपनी भी अपना प्रॉमिस तोड़ेगी। कंपनी ने प्रॉमिस किया आपको कि आपको पेमेंट करेंगे, पर वो प्रॉमिस टूट जाएगा। क्यों टूटेगा? क्योंकि आपने चीटिंग करी है। अभी समझा? क्लियर है बेटा अंकिता? यस मैम, थैंक यू मैम। ओके। मैम। नाउ, यस मैम, थैंक यू। हाँ जी बोलिए। हाँ जी शिवांश। मैम अगर मेरा अगर कोई स्टाफ वहाँ पे स्मोक करता है तो वो अटमुद गुशफेद में आएगा कि नहीं आएगा? वो आपको बताना पड़ेगा कि पहले से ही ऐसा है मेरी कंपनी में कि स्मोकिंग एरिया बना हुआ है, वो आपको बताना पड़ेगा। अगर नहीं बताया तो चीटिंग है। देखो मेरी बात समझो, बहुत सिंपल है। आपकी कंपनी में जो कुछ हो रहा है ना वो सब लिखना पड़ेगा, वो सब बताना पड़ेगा। आपके एम्प्लॉयज का आप इंश्योरेंस ले रहे हैं ना, तो आपको कंपनी के बारे में सब बताना पड़ेगा। स्मोकिंग एरिया बनी हुई है,
अभी आप एयरपोर्ट जाते हो, एक मिनट सुनो, आप एयरपोर्ट जाते हो, एयरपोर्ट देखा है आपने कभी? एयरपोर्ट में देखा है स्मोकिंग एरिया बनी हुई होती है। अब आपको ये बताना पड़ेगा पूरे एयरपोर्ट का, आप जब भी इंश्योरेंस ले रहे हो तो ये बताना पड़ेगा एयरपोर्ट में क्या क्या चीजें, कुछ हिडन नहीं रखना। अगर हिडन रखा तो चीटिंग है, एटमोस्ट गुड फेथ का प्रिंसिपल फॉलो नहीं कर रहे। हाँ, अगर ये चीज आपने बता दी तो कंपनी आपको आपको पेमेंट करेगी जब नुकसान होगा। तो क्यों करेगी? क्योंकि प्रीमियम भी तो कंपनी आपसे वैसा चार्ज करती है ना, ज्यादा। कंपनी को तो पता है कि ये पर्टिकुलर जिस चीज का इंश्योरेंस हो रहा है ना, पूरे एयरपोर्ट का इंश्योरेंस हो रहा है, तो वहां पर स्मोकिंग एरिया बनी हुई है। कितने बने हुए? 20 बने हुए, टोटल 20 बने हुए, तो रिस्क ज्यादा है ना। अब रिस्क ज्यादा तो प्रीमियम भी ज्यादा। तो कंपनी आपसे जब प्रीमियम ज्यादा ले रही है तो पेमेंट भी तो करेगी, अगर उसकी वजह से कुछ नुकसान हुआ तो। ठीक है, अब समझ आया शिवांश? क्लियर है? आगे बढ़े? यस मैम। ओके, अच्छा अब आगे बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और मुझे आई मीन आई रियली होप आपको समझ में आ रहा है, और मुझे सही लग रहा है कि आप डाउट्स पूछ के क्लियर कर रहे हैं। ठीक है, सो डोंट हेजिटेट इन आस्किंग डाउट्स, दैट्स ओके। कोई सिंपल डाउट भी है ना, वो भी पूछ सकते हैं, कोई बात नहीं। ठीक है, क्योंकि वो सिंपल मेरे लिए हो सकता है, आपके लिए तो चीजें नई नई है ना। तो प्लीज आप जो भी डाउट है वो क्लियर कर सकते हैं। ठीक है ना? प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी, अब जैसे मैंने एग्जांपल दिया फैक्ट्री का, आपने फायर इंश्योरेंस लिया 1 ईयर का, ठीक है ना? अब 1 ईयर हो गया, कुछ भी नुकसान नहीं हुआ, नुकसान नहीं हुआ तो पेमेंट भी नहीं मिलेगा। आप ऐसे नहीं बोल सकते कि मैंने तो प्रीमियम भरा था ना कंपनी को। यू कैन नॉट से दिस लाइन, यू कैन नॉट यूज दिस स्टेटमेंट टू द कंपनी। क्यों? क्योंकि कंपनी ना आपको आपको आपका ही पॉलिसी डॉक्यूमेंट बोलेगी खोलो, आप ही ओपन करो, और आपने साइन करी हुई है और उधर प्रिंसिपल लिखा हुआ है, प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी, और आपने साइन भी की हुई है, आपने पढ़ा था ये पॉलिसी डॉक्यूमेंट। तो जिनको नॉलेज नहीं होता ना, वो लड़ाई झगड़े करते हैं, और जो पढ़े लिखे होते हैं, जैसे आप पढ़ रहे हैं तो आपको नॉलेज है, आपको नॉलेज मिल गया कि जनरल इंश्योरेंस में प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी होता है। मतलब कोई भी चीज का आप इंश्योरेंस ले लो, मैं चीजें बोल रही हूँ, घर, कार, मैं लाइफ इंश्योरेंस नहीं बोल रही हूँ, प्लीज ध्यान दीजिए। ये बात चल रही है तो मैम जनरल लाइफ इंश्योरेंस। इंश्योरेंस इंडेमनिटी में एप्लीकेबल नहीं होता क्या? नहीं, नहीं होता, यही सबसे पहले मैंने बताया। मैं एग्जांपल देती हूँ ना, उसका भी एग्जांपल देती हूँ क्यों इंडेमनिटी एप्लीकेबल नहीं होता है। देती हूँ, पहले मैंने जनरल इंश्योरेंस शुरू किया ना, तो पहले मैं उसका बता देती हूँ। अब जनरल इंश्योरेंस में आपने खरीदा कार का इंश्योरेंस, कार में आपने खरीदा था एक्सीडेंट इंश्योरेंस, कितने टाइम के लिए खरीदा था? 1 ईयर, सपोज 1 ईयर। जनरली जनरल इंश्योरेंस 1 ईयर के लिए होता है जनरली, फिर उसको आप रिन्यू करवाते रहते हो एवरी ईयर, ऐसा होता है। तो अब 1 ईयर में कार को एक्सीडेंट नहीं हुआ तो आप ये नहीं बोल सकते कंपनी को पैसा दो, यू कैन नॉट क्लेम, नो। हाँ, अगर नुकसान हुआ, एक्सीडेंट इंश्योरेंस करवाए और एक्सीडेंट हुआ, बेशक छोटा एक्सीडेंट हुआ, तो भी आप थोड़ा जो जो जितना बनता है ना उतना आपको कंपनी क्लेम करके देती है। समझ आ रहा है कि नहीं? उसे कहते हैं इंडेमनिटी। अब यस देखो, सर। हाँ, अब यस देखो मैम। लाइफ में आ जाओ। लाइफ इंश्योरेंस में क्या होता है? लाइफ इंश्योरेंस में प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी एप्लीकेबल नहीं होता है। अच्छा, क्यों नहीं होता है? क्यों नहीं होता है, ध्यान से सुनिए। क्योंकि ना उसमें उसमें है ना, ऐसा लिखा होता है पॉलिसी डॉक्यूमेंट में, द क्लेम विल बी सेटल्ड on the death of the insured or on the maturity period whichever is earlier, ऐसा लिखा होता है हर लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी डॉक्यूमेंट में, ये लिखा होता है। अब इसका मतलब क्या है? जो मैंने बोला उसका मतलब आप मुझे बताएंगे? I repeat, the claim will be settled on the death of the insured or on the maturity period whichever is earlier। तो आप मुझे बताएंगे इसका मतलब क्या है? मैम हाँ जी, मैम मतलब अगर जो इंश्योरर है उसकी डेथ होने के बाद पैसा मिलेगा या तो मैच्योरिटी पीरियड पे, लेकिन मिलेगा। पैसा मिलेगा ये कंफर्म वेरी है। गुड, वेरी गुड। ये किसने आंसर दिया वैसे?
किसने मैम आंसर दिया? संदीप। संदीप, गुड जॉब, वेरी गुड वेरी गुड। इसका मतलब पैसा पक्का मिलेगा, या तो डेथ पे मिलेगा या तो डेथ से पहले जब मैच्योरिटी पीरियड आएगा। समझो अभी मैंने अपना लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लिया हुआ है 20 ईयर्स के लिए और मैं 30 ईयर्स पे हूँ अभी। एग्जाम्पल ले लो, आई एम 30 ईयर्स ओल्ड। अब मैंने पॉलिसी खरीदा 20 ईयर्स के लिए, तो 50 ईयर्स पूरे हो जाने पर सपोज मैं स्टिल अलाइव हूँ, 50 ईयर्स हो जाएंगे ना, पॉलिसी का डॉक्यूमेंट की लाइफ, पॉलिसी की लाइफ कितनी है? 20 ईयर्स। मेरी लाइफ की बात नहीं कर रही हूँ, पॉलिसी की लाइफ। पॉलिसी मैंने खरीदी 20 ईयर्स, तो 30 + 20 50 ईयर्स पे मैं जब पहुंचूंगी तो 50 ईयर्स पे मैं स्टिल अलाइव हूँ, तो मैच्योरिटी पीरियड क्या है? 50 ईयर्स। तो 50 ईयर्स पे पैसा मिलेगा, लेकिन मिलेगा, जरूर मिलेगा। अच्छा, अगर 40 ईयर्स के बाद 42 ईयर्स में मेरी डेथ हो जाती है, सपोज 42 ईयर्स में मेरी डेथ हो जाती है, मतलब अब मेरी पॉलिसी की लाइफ कितनी थी? 20 ईयर्स, मतलब 50 ईयर्स तक, मेरे 50 ईयर्स तक ये पॉलिसी का लाइफ है। लेकिन 42 ईयर्स मतलब 8 ईयर्स पहले मेरा डेथ हो गया, तो जो 42 ईयर 42nd ईयर है ना, जिस टाइम पे मेरी डेथ हुई है उस टाइम पे मैम मेरी योर फैमिली वॉइस को, इज ब्रेकिंग। हाँ जी आवाज आ रही है? यस मैम। ओके यस मैम। ओके। तो 42nd ईयर पे मेरी फैमिली को पूरा का पूरा जितना भी अमाउंट है वो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी पे करती है। तो ऑन डेथ, जब मेरी पॉलिसी की लाइफ से पहले डेथ हो गई, तो डेथ पे पैसा मिलेगा किसको? मुझे तो नहीं मिलेगा, मैं तो चली गई, मेरी फैमिली को मिलेगा। अच्छा, अगर मैं 20 ईयर्स के बाद भी अलाइव हूँ, ठीक है, आई एम स्टिल अलाइव, तो सारा का सारा पैसा मुझे मिलेगा। नहीं समझा आपको? ऑन द, समझा मैं। यस, ऑन द डेथ और ऑन द मैच्योरिटी, और वर्ड इंपॉर्टेंट है, और ऑन द डेथ, या तो डेथ के टाइम पे पैसा मिलेगा, और ऑन द मैच्योरिटी विच इज अर्लियर, जो पहले आएगा तब आपको पैसा मिलेगा। डेथ पहले आएगी तो डेथ के टाइम पे फैमिली को पैसा मिलेगा, और अगर आप अलाइव हैं तो जब मैच्योरिटी पीरियड आएगा तब आपको पैसा मिलेगा। पर पैसा जरूर मिलेगा, फंड्स आपको जरूर पे बैक होते हैं। इसीलिए ये रीजन है प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी इज नॉट एप्लीकेबल टू लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज, क्योंकि उसमें आपको जरूर मिलता है। तब तो कहते हैं लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी जरूर खरीदें, जरूर खरीदें। इट इज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, बहुत लंबी वाली इन्वेस्टमेंट होती है ये। तो मतलब या तो आपको मिलेगा या तो आपकी फैमिली को मिलेगा, पर मिलेगा जरूर। हाँ अंकिता बोलो, कुछ डाउट है बेटा? अंकिता, यस हाँ मैम। जी बोलो। मैम अगर बाई चांस नॉमिनी का भी डेथ हो जैसे, और एक ही हाँ तो फिर नॉमिनी उसमें है सेकंड तो नॉमिनी होता है बेटा। तो उसमें ना, उस केस में ना आपको सेकंड नॉमिनी, समझो मेरी भी डेथ हो गई, मेरे नॉमिनी की भी डेथ हो गई, तो उस केस में ना आपको सेकंड नॉमिनी देना पड़ता है, या फिर कंपनी ना स्क्रूटिनाई करती है कि इनके फैमिली मेंबर्स में कौन कौन है, ठीक है। फिर स्क्रूटिनाई हो जाने के बाद कंपनी डिसाइड करती है कि पैसा किसको देना चाहिए, ठीक है। स्क्रूटिनाई करती है कि इनकी फैमिली में, आप समझो किसी वाइफ की डेथ हो गई, तो वाइफ का नॉमिनी था हस्बैंड, उस हस्बैंड की भी डेथ हो गई, सपोज एग्जाम्पल ले लो, तो हस्बैंड वाइफ दोनों की डेथ हो जाती है, तो उनके बच्चे होंगे ना, तो कंपनी पूरा स्क्रूटिनाई करती है कि ये हस्बैंड और वाइफ के बच्चे कौन थे, ठीक है, कितने बच्चे हैं और सबसे बड़ा कौन है, तो ऐसे स्क्रूटिनाई किया जाता है, ठीक है ना बेटा। yes, चलो अभी आगे देखते हैं, अभी आगे देखते हैं मैम प्रिंसिपल ऑफ, हाँ जी। मैम ये प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी में जैसे एक फैक्ट्री में 1 साल का इंश्योरेंस हाँ कराया और हाँ, उसी में 2-3 बार आग लग गई, तो क्या 2-3 बार पे करेगी इंश्योरेंस कंपनी? देखो 2-3 बार आग लगेगी कैसे, एक बार आग लग गई तो वो एरिया को तो नुकसान हो ही गया ना, समझ रहे ठीक हो है। आप समझो 20% फायर लग गई, 20% फैक्ट्री जल गई, तो उसी एरिया पे वापस कैसे फायर होगा, वो तो जल गई ना ऑलरेडी एरिया, समझ में आ रहा है। तो उतना ही आपको मिलता है जितना, जितना क्या कह सकते हैं उसको, जितना प्रपोर्शन आपका लॉस हुआ है ना, उतना प्रपोर्शन आपको पे करके दिया जाता है, पूरा थोड़ी पे करते,
पूरा नहीं, मैं कह रहा हूँ कि एक ही मतलब 2-3 जगह हाँ पे हो अलग सकता अलग है, बार आग लगी तो हाँ हो मतलब पे सकता है, करेंगे हो ना सकता है, एक साल में। हो सकता है। पर आपको ना अपना कॉन्ट्रैक्ट रीड करना पड़ता है कि कॉन्ट्रैक्ट में ये चीज लिखी हुई है कि नहीं, क्योंकि आपने ये चीज बोलकर इंक्लूड करवानी होती है। समझा? हर एक देखो, देखो अभी आप मोबाइल रिचार्ज करने जाते हो, बहुत सिंपल है। देखो डाउट जो आप पूछ रहे हो ना, बहुत सिंपल ले लो उसको। चलो आप मोबाइल रिचार्ज कराने जाते हो तो रिचार्ज की तो बहुत सारी स्कीम्स होती है ना। 500 में आपको इतना इंटरनेट जीबी फ्री मिलेगा, और कॉलिंग इतने फ्री मिलेंगे, और इंटरनेशनल कॉलिंग भी फ्री मिलेंगे। चलो 1000 की स्कीम लोगे तो आपको ये वाला फ्री मिलेगा, ये वाला भी फ्री मिलेगा, ये भी फ्री मिलेगा, इंटरनेट जीबी भी आपको ज्यादा मिलेगा, है ना? अलग अलग स्कीम्स होती है ना मोबाइल रिचार्ज करने की, होती है कि नहीं होती है? यस यस। मैम। हाँ, यस मैम। वैसे ही होता है ये पॉलिसी। जितनी अच्छी पॉलिसी, जितनी महंगी पॉलिसी खरीदेंगे, उतने आपको राइडर्स ज्यादा मिलेंगे। राइडर्स मतलब एक्स्ट्रा बेनिफिट्स। आई बात समझ में? तो आपको आपको जो चाहिए ना कि 2-3 बार आग लग गई तो आप वो बोलो कंपनी को कि मुझे ऐसी पॉलिसी चाहिए जिसमें 2-3 बार आग लग जाए तो 2-3 बार भी आप मुझे पे कर सकें। तो ये वाली स्कीम आपको कंपनी तब बेचेगी जब आप बताएंगे। कस्टमाइज्ड क्या कहते हैं इसे, इंश्योरेंस पॉलिसी मतलब कस्टमाइज्ड मतलब कस्टमर के हिसाब से रूल्स एंड रेगुलेट, थोड़ा थोड़ा टर्म्स एंड कंडीशंस में चेंजेस करके कंपनी आपको मॉडिफाई करके ऐसी पॉलिसी देती है बनाकर, डिजाइन कर कर, जो आपको चाहिए। अब हम टेलर के पास जाते हैं ड्रेस बनवाने, तो टेलर आपको ड्रेस कैसे देते हैं? आपके डिजाइन चूज किए हुए, है ना? सो इट इज टेलर मेड। तो पॉलिसी कंपनी आजकल टेलर मेड भी बनाती है। तो टेलर मेड का मतलब जैसी आपको रिक्वायरमेंट है ना, वैसे आपको पॉलिसी दी जाएगी। ठीक है, अब क्लियर हुआ? ओके मैम। ओके। तो इंडेमनिटी का मतलब होता है सिक्योरिटी अगेंस्ट लॉस और डैमेज। हाँ ठीक है, इंडेमनिटी का मतलब होता है हम आपको सिक्योरिटी दे रहे हैं किसके अगेंस्ट में, अगर कुछ भी डैमेज हुआ तो ठीक है। इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस, जब हम इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, द इंश्योरर अंडरटेक्स टू इंडेमनिटी, इंश्योरर मतलब कंपनी, कंपनी इज रेडी टू अंडरटेक, टू अंडरटेक क्या, रिस्क, रिस्क लेती है वो, ठीक है, रेडी टू अंडरटेक रिस्क, टू इंडेमनिटी और कॉम्पेंसेट, मतलब जब लॉस होगा तो हम कॉम्पेंसेट करेंगे, मतलब आपको पे करेंगे। किसको पे करेंगे? द इंश्योर्ड, द क्लाइंट, फॉर द लॉसेस अकरिंग ड्यू टू रिस्क कवर्ड। जो आपने रिस्क मुझसे कवर करवाया था, इंश्योरेंस पॉलिसी ली थी, उसके अगेंस्ट में अगर कुछ भी लॉस हुआ तो देखो कितना क्लियर कट लिखा हुआ है, फॉर द लॉसेस अकरिंग ड्यू टू रिस्क कवर्ड। अगर लॉस अकर होगा तो कंपनी आपको कॉम्पेंसेट करेगी, कितना क्लियर कट लिखा हुआ है। द कॉम्पेंसेशन पेबल एंड द लॉस सफर्ड आर टू बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। ऑफ कोर्स आपका कितना लॉस हुआ और मुझे आपको कितना पे करना है, उन दोनों को मनी के टर्म्स में वैल्यू किया जाता है, मेजर किया जाता है। यही बात सेम मैंने बताई अभी। अगर आपका 20% नुकसान हुआ तो आपको पूरा का पूरा पॉलिसी का नहीं मिलेगा, सिर्फ 20% के जितना मिलेगा। द अकरेंस ऑफ लॉसेस और रिस्क इज ऑल्सो कॉन्टिजेंट। अभी अभी ये जरूरी थोड़ी कि लॉस हो ही हो, नहीं, ये तो कॉन्टिजेंट है। कॉन्टिजेंट मतलब मे और मे नॉट अकर, लॉस हो भी सकता है, लॉस नहीं भी हो सकता है। इट इट द ये इट नहीं होना चाहिए, ये इफ होना चाहिए। इफ द रिस्क डज नॉट अकर, देखो अभी क्लियर कट लिखा हुआ है, इफ द रिस्क डज नॉट अकर द इंश्योरर नीड नॉट पे एनीथिंग टू द इंश्योर्ड। अगर रिस्क नहीं हुआ, लॉस नहीं हुआ, तो इंश्योरर मतलब कंपनी विल नॉट पे एनीथिंग टू द क्लाइंट। कितना क्लियर कट लिखा हुआ है ना? क्लियर हुआ ये सबको? यस। Okay. So next is after principles of indemnity, we have yes, ये भी बहुत important है। The principle of indemnity shall apply only to general insurance। देखो लिखा हुआ जो मैंने कहा, like fire, marine theft and not life insurance। ये जो मैंने आपको पहले बताया ना, बस सारी चीजें वही लिखी हुई हैं जो मैंने आपको पहले क्लियर की। ये एग्जाम्पल के साथ है, आप पढ़ लीजिएगा। सेम एग्जाम्पल है, सेम। ठीक है, आपने पॉलिसी ली हुई थी 1 लाख की, लेकिन घर को आग लग गई, एसेट्स को आग लग गई, 40,000 की नुकसान हो गया, तो 40,000 ही पे बैक होके मिलेगा।
1 लाख नहीं मिलता, समझ में आया? ठीक है ना? यस मैम। ओके, अब आ जाते हैं सब्रोगेशन। अब ये सब्रोगेशन क्या होता है? The doctrine means the rule of subrogation is corollary to the principle of indemnity। मतलब ये जुड़ा हुआ है। ये किससे corollary मतलब ये attached है, जुड़ा हुआ है। किसके साथ attached है? Principle of indemnity के साथ attached है। क्या? The doctrine of the subrogation, the rule of the subrogation is attached to the principle of indemnity. It applies to all insurance contracts। ये सारे इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट के साथ एप्लीकेबल होता है, विच आर कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ इंडेमनिटी। लेकिन ये वो कॉन्ट्रैक्ट के साथ अटैच्ड होता है जिसमें इंडेमनिटी है। मतलब समझने वाली बात है, ये भी जनरल इंश्योरेंस में एप्लीकेबल होता है। समझ में आ रहा है मैं क्या पढ़ रही हूँ और क्या बता रही हूँ? इट अप्लाइज टू ऑल द इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स विच आर द कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ इंडेमनिटी। मतलब जनरल इंश्योरेंस, सिंपल, क्योंकि इंडेमनिटी किसके साथ होता है? जनरल। और ये बोल रहा है कि सब्रोगेशन जिसके साथ इंडेमनिटी होता है उसके साथ अटैच होता है। तो मतलब ये भी जनरल इंश्योरेंस में एप्लीकेबल होता है, लाइफ में नहीं होता है। अकॉर्डिंग टू दिस डॉक्ट्राइन, आफ्टर द इंश्योर्ड इज कॉम्पेंसेटेड फॉर द लॉस caused by the damage to the property insured by him, the right, यहाँ से important है, the right of the ownership over such damaged property shall be passed on to the insurer। किसी को समझा मैंने क्या पढ़ा? कोई मुझे एग्जाम्पल देकर बता सकता है? I can give you example, but before that I want to check if you have understood। So, आप एग्जाम्पल दे सकते हैं ये लाइन का अकॉर्डिंग से जो लिखा हुआ है? बता सकते हैं? हाँ जी बोलिए। मतलब इंश्योरेंस पे फोन लिया है, वो डैमेज हो गया तो उसको इंश्योरेंस कंपनी को रिटर्न करके उसका ओनरशिप ट्रांसफर कर सकते हैं। मतलब एग्जाम्पल दो ना, आपने सही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट बोला आपने, वेरी गुड। इसका एग्जाम्पल दे सकते हो? कोई एक एग्जाम्पल से सबको क्लियर हो जाएगा। शुभम? मतलब एक फोन लिया मैंने इंश्योरेंस पे। फोन नहीं, फोन का इंश्योरेंस नहीं होगा। फोन नहीं, कुछ और एग्जाम्पल दे दो। मैम कार। कार, वेरी गुड, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कार का एग्जाम्पल दे दो। इंश्योरेंस पे लिया तो हाँ वो जी, डैमेज हो गई, हाँ जी, तो उसको क्या करेंगे? इंश्योरेंस क्लेम करेंगे, जो पैसा रहेगा वो ले लेंगे और कार का ओनरशिप कंपनी को ट्रांसफर कर वेरी देंगे। गुड वेरी गुड, परफेक्ट एग्जाम्पल, 100% परफेक्ट, वेरी गुड शुभम। नाउ अभी आपको समझ गया होगा कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। ये देखो, अकॉर्डिंग टू दिस डॉक्ट्राइन, आफ्टर द इंश्योर्ड इज कॉम्पेंसेटेड फॉर द लॉस, जब आपको पूरा पैसा मिल जाएगा, इंश्योर्ड मतलब क्लाइंट को जब पूरा का पूरा कॉम्पेंसेशन मिल जाएगा। क्यों क्यों मिलेगा? क्योंकि प्रॉपर्टी को डैमेज हो गया था, ठीक है, जिसका आपने इंश्योरेंस लिया था ना, तो उस प्रॉपर्टी को डैमेज हो गया। डैमेज हो जाने के बाद आपको पूरे नुकसान का, लॉस का कॉम्पेंसेशन मिल जाएगा। कॉम्पेंसेशन के बाद आफ्टरवर्ड लिखा हुआ, कॉम्पेंसेशन के बाद द राइट ऑफ द ओनरशिप विल बी ट्रांसफर्ड टू द इंश्योरर ओवर सच डैमेज प्रॉपर्टी। जो डैमेज हो गई ना, कार एक्सीडेंट हो गया तो कार टेढ़ी हो गई, खराब हो गई, जल गई, एक जगह से आग लग गई, उसकी पीछे वाला पोर्शन जल गया लेकिन आगे वाला थोड़ा टिल्ट हो गया, खराब हो गया, टूट गया, कांच टूट गए, ठीक है। तो डैमेज वाली, इमेजिन करो डैमेज वाली कार पड़ी है। अब वो डैमेज वाली कार आप नहीं रख सकते क्योंकि आपको तो पैसा मिल गया ना। ये तो वो बात हो जाएगी कि चित्त भी तेरी पट भी तेरी, बोलते हैं ना ऐसा हिंदी में। मतलब आपने पैसा भी ले लिया और कार भी आप ही रखोगे। तो कार कार आप पूछोगे कार डैमेज हो गई है, कोई भी रखे, क्या फर्क पड़ता है? नहीं फर्क पड़ता है, क्योंकि डैमेज कार की भी वैल्यू होती है। डैमेज कार के पार्ट्स को बेचकर भी कंपनी कमा सकती है ना। तो इसीलिए सब्रोगेशन का प्रिंसिपल निकाला गया कि आपको, एक तो हम तो पेमेंट कर ही रहे हैं ना, कंपनी तो आपको पे कर ही रही है, तो आप कार हमें दे दीजिए, डैमेज प्रॉपर्टी हमें दे दीजिए। अब हमारा काम है उसमें से, उसके पार्ट्स को बेचकर उसमें से पैसा निकालना। आपको तो पैसा मिल गया ना। ये तो वो बात हो जाएगी कि बेचकर भी आप पैसा खुद ही ले रहे हैं और कॉम्पेंसेशन भी आपको ही मिल रहा है। ये तो सही बात नहीं होगी। इसीलिए सब्रोगेशन का कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया, क्योंकि पहले लोग देते नहीं थे ना कार, कहते थे कि हमारी प्रॉपर्टी है ये। ऐसा फिर एक प्रिंसिपल बनाया गया, कॉन्ट्रैक्ट में लिखा गया, रिटर्न में डाला गया और आपसे साइन ली जाती है कि जब आपकी प्रॉपर्टी डैमेज हो जाएगी, जब हम आपको कॉम्पेंसेशन दे देंगे, तो डैमेज की हुई प्रॉपर्टी आप हमें दे देंगे। अब हमारा काम है उससे पार्ट्स निकाल कर उसके बेचना, ठीक है।
तो कंपनी उसमें से अर्न करती है ना, ठीक है ना। चलो आगे देखो, वारंटीज। अब वारंटीज का मतलब क्या होता है? वारंटी मतलब आपको पता है, जब आप मोबाइल खरीदते हो तो आपको वारंटी मिलती है ना, वारंटी होती है ना। वारंटी नहीं समझता, वारंटी का मतलब क्या होता है? चलो बोलो। गारंटी। हाँ, गारंटी नहीं, ये वारंटी है। वारंटी का मतलब डैमेज क्या पीस होता है? को बना के देंगे। हाँ, मतलब वारंटी का मतलब क्या होता है, जब आपके मतलब मोबाइल को, कि फोन अगर खराब हो गया तो आके हाँ बना सकते हैं। हाँ बिल्कुल, फ्री में, फ्री चार्जेस में, ठीक है, उसे कहते हैं वारंटी। तो देयर आर सर्टेन कंडीशंस एंड प्रोमिसेस इन द कॉन्ट्रैक्ट, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, दे आर कॉल्ड वारंटीज। इसमें ना कुछ प्रोमिसेस किए जाते हैं, कंडीशंस बनाई जाती हैं, जिसपे आप भी एग्री करते हैं और कंपनी भी एग्री करती है, उसे कहते हैं वारंटी। वारंटी इज एन इम्पॉर्टेंट कंडीशन, ये कंडीशन होती है, ये कंडीशन होती है, शर्त रखी जाती है दोनों के बीच में, which is to be fulfilled by the insured, मतलब क्लाइंट को फुलफिल करना पड़ता है। ऑन द ब्रीच ऑफ द वारंटी द इंश्योर्ड बिकम्स फ्री फ्रॉम हिज लायबिलिटी। अगर आप ब्रीच मतलब तोड़ना, अगर आप वारंटी के रूल्स को तोड़ते हैं तो मतलब आपके सर पे कोई लायबिलिटी, अब कंपनी आपको पे नहीं भी कर सकती है, क्योंकि आपने ब्रीच मतलब तोड़ा ना, रूल को तोड़ा। Okay, so that kind. Therefore, the insured should fulfill the conditions, promises during the insurance contract. इसीलिए आपको हर promise को fulfill करना पड़ता है, whether it is important or not in the connection with risk insured. चाहे वो important है या छोटी कोई चीज है जो risk insured के साथ connected नहीं भी है। Warranties are generally mentioned in the policy itself. Policy के document में ये warranties लिखी जाती हैं। Such warranties are called as express warranties. जो दी जाती है ना, उन्हें कहा जाता है express warranties. Which are not mentioned, उसे कहते हैं implied warranties. जो समझने वाली बात है, जो समझने वाली बात है वो मेंशन नहीं करते हैं, वो लोग लिख कर नहीं देते हैं, तो उसे कहते हैं implied warranties. implied मतलब नेचुरली वो implied होगा ना, नेचुरली वो एप्लीकेबल होगा, और जो लिखकर मेंशन की जाती है उसे कहते हैं एक्सप्रेस्ड वारंटीज, ठीक है। Which is your next lecture now? अश्विनी मैम। अश्विनी मैम। ठीक है, वो आ जाए तो मुझे बता देना, आई विल स्टॉप। ओके, वी हैव 3 more what to say principles, 3 more principles, simple है। Causa proxima. Causa proxima is a Latin word which means proximate cause, near cause. Proximate means हम कहते हैं ना approximately it is 42.0, देखो 42.09 आते हैं, तो हम कहते हैं ना अप्रोक्सीमेटली इट इज 43, नियर वाला कॉस्ट, मतलब आपकी प्रॉपर्टी को जो नुकसान हुआ उसका रियल कॉस्ट क्या था, नजदीक फायर लगी तो क्यों लगी, उसका नजदीक वाला रीजन बताइए, कॉज बताइए कि ये क्यों लगी। कॉज मतलब कॉज एंड रीजन, ऐसा होता है ना, कॉज मतलब इसका रीजन क्या था कि ये फायर क्यों लगी, क्यों बर्स्ट हो गया ये फायर से, तो आप बताएंगे कि ये जो इलेक्ट्रिक का यहाँ पे स्विच लगा हुआ है ना, ये इसमें से आग लगी है, ठीक है, तो उसे कहते हैं कॉज प्रॉक्सिमा, ठीक है। इट इज अ लैटिन वर्ड विच मीन्स प्रॉक्सिमेट कॉज, मतलब नियर वाला, नजदीक वाला, सबसे रीजन जो था ये क्यों लगा उसका नियर वाला रीजन। द रूल इज दैट इमीडिएट एंड नॉट द रिमोट कॉज, रिमोट मतलब दूर, इसका रूल है ना इमीडिएट मतलब आग आग जब लगी तो इमीडिएट कॉज क्या था इसका, इज टू बी रिगार्डेड, मतलब दूर वाला कॉज नहीं देखेंगे आप, इमीडिएट वाला कॉज देखेंगे। द रियल कॉज ऑफ द लॉस मस्ट बी कंसिडर्ड व्हाइल पेमेंट ऑफ द लॉस, तो आपका जो रियल कॉज था ना वो आप कंसिडर करेंगे पेमेंट करने के टाइम पे। इफ द रियल कॉज ऑफ द लॉस इज नॉट इंश्योर, अब अगर आपने रियल कॉज को इंश्योर नहीं करवाया तो कंपनी आपको पेमेंट भी नहीं करेगी। इसका मतलब इलेक्ट्रिक का शॉर्ट सर्किट हो गया, आपके पॉलिसी में ये इंक्लूड ही नहीं था और उसकी वजह से आग लग गई, तो आपको कंपनी पे नहीं करेगी। एग्जाम्पल समझ में आया? घर में आग लगी, किसकी वजह से लगी, व्हाट इज द कॉज ऑफ द फायर, व्हाट इज द रीजन ऑफ द फायर, इलेक्ट्रिक स्विच में शॉर्ट सर्किट हो गया, अब वो शॉर्ट सर्किट होने की वजह से आग लग गई ना, और आपने ये ना इंश्योरेंस पॉलिसी में आपने ये डलवाया ही नहीं था शॉर्ट सर्किट वाला रीजन,
तो नहीं डलवाते तो कंपनी भी नहीं पे करेगी। वेरी सिंपल। The determination of the real cause depends upon the working and practice of insurance and circumstances. तो ये जो इसको जो पहचानना होता है ना कि किसकी वजह से आग लगी, ये इंश्योरेंस कंपनी जो सर्कमस्टेंसेस होते हैं, आग लगना या चोरी होना, जो भी सर्कमस्टेंसेस होगा उस हिसाब से कंपनी अपना डिटेक्शन करती है, मतलब डिटेक्ट करती है, ढूंढती है, निकालती है, सर्च करती है और फिर उसके बाद पेमेंट करती है अगर रिलेटेड होगा तो, नहीं तो पेमेंट भी नहीं करेगी कंपनी। ये सब डॉक्यूमेंट में लिखा होता है, ठीक है, छोटे छोटे वर्ड्स में जो लिखा होता है जो हम पढ़ते भी नहीं है, इग्नोर करते हैं, तो ये सब वही लिखा होता है एक्चुअली। फिर हम साइन तो कर देते हैं, बाद में फिर कंपनी से जब जब बहस होती है, डिस्कशन होती है, तो कंपनी कहती है आपने साइन किया, देखो ये लिखा भी हुआ है, ये रूल कॉन्ट्रैक्ट की पॉलिसी में लिखा हुआ है, आपने शायद पढ़ा नहीं है, अब पढ़ लीजिए, ठीक है। असाइनमेंट एंड नॉमिनेशन, ये तो आपको पता ही है क्या होता है। असाइनमेंट मतलब समझो मेराइन और लाइफ इंश्योरेंस कैन बी असाइन टू समवन विदाउट प्रायर कंसेंट टू द इंश्योरेंस कंपनी। मतलब आप अपनी मर्जी से किसी और को असाइन कर सकते हैं कि जो नुकसान होगा ना, आप वो मेरा पैसा इनको भर दीजिएगा, अपनी मर्जी से, कंसेंट लेने की जरूरत नहीं है इंश्योरेंस कंपनी से। लाइफ इंश्योरेंस मेरी मर्जी है ना, मैं किसको अपना ये अधिकार दे रही हूँ कि ये पूरा पैसा जब मैच्योरिटी डेट आएगी तो किसको देना है। However, fire and accident policy can be assigned to someone only with the prior consent to the insurers. अब कंपनी से परमिशन कब लेनी पड़ती है? प्रायर कंसेंट मतलब परमिशन, पूछकर करना पड़ेगा कि किसको नॉमिनी बनाया, वो बताना पड़ेगा। किस केस में? फायर एंड एक्सीडेंट में, ठीक है, क्योंकि ये थोड़े ज्यादा रिस्की होते हैं ना, इसलिए। असाइनमेंट मींस ट्रांसफर ऑफ द राइट्स टू क्लेम द मनी फॉर द इंश्योरेंस कंपनी। ये मैंने पहले भी बताया, असाइनमेंट मतलब आपका है, आपका वो, लेकिन आप किसी और के नाम पे असाइनमेंट करके बैठे हो, मतलब ये आप बोलोगे मिस्टर बी को पे कर दीजिएगा, तो मिस्टर बी हैज द राइट टू क्लेम द मनी फ्रॉम द कंपनी, क्योंकि आपने असाइनमेंट पे नाम मिस्टर बी का लिखा है, ठीक है। और नॉमिनेशन तो आपको पता है, लाइफ इंश्योरेंस पे आप नॉमिनी लिखते हो ना, मतलब आप अपने पापा का नॉमिनी लिखेंगे, नाम अपने मॉम के लिए लिखेंगे, अपनी सिबलिंग्स के लिए लिखते हैं, तो जिनका नाम होगा पॉलिसी डॉक्यूमेंट में, तो डेथ के टाइम पे नॉमिनेशन उनको दिया जाएगा। डेथ के टाइम पे नॉमिनेशन में ये फर्क है। असाइनमेंट में तो उसी को ही दिया जाएगा जिसका नाम आपने असाइन किया, चाहे आप हैं चाहे आप नहीं हैं, असाइनमेंट ऐसा होगा। नॉमिनेशन मतलब डेथ के टाइम पे नॉमिनी को दिया जाएगा, अगर आप हैं तो आपको ही दिया जाएगा, ये फर्क होता है असाइनमेंट एंड नॉमिनेशन। नेक्स्ट है आपका रिटर्न ऑफ प्रीमियम। अब ये क्या है? प्रीमियम वंस पेड शैल नॉट बी रिफंडेड, ये लिखा होता है पॉलिसी डॉक्यूमेंट में। आप बेशक उसको बोल दें कि मुझे नहीं चाहिए, तो भी अब जो प्रीमियम आपने कंपनी को दे दिया वो वापस कभी नहीं मिलता। In other words, the question of returning the premium shall not arise in all types of insurance, including life. आप लाइफ इंश्योरेंस में भी ऐसे नहीं बोल सकते आप मुझे ये पॉलिसी कंटिन्यू नहीं करनी है तो आप प्रीमियम रिटर्न कर दो, नहीं, बिल्कुल नहीं होता है। In case of general insurance, a single premium is paid and it will not be returned. General insurance में ना लगभग क्या होता है, आप सारा का सारा प्रीमियम एक साथ ही पे कर देते हो, जिसे कहते हैं सिंगल प्रीमियम, और वो कभी भी रिटर्न नहीं किया जाएगा, चाहे लॉस हुआ चाहे नहीं हुआ, आपको प्रीमियम कभी रिटर्न नहीं मिलता। इवन इफ द कॉन्टिजेंसी डज नॉट अकर ड्यूरिंग द पॉलिसी इज इन इनफोर्स, मतलब जब तक पॉलिसी चल रही है, लाइफ है पॉलिसी की, अगर कॉन्टिजेंसीज नहीं भी हुए, लॉस नहीं भी हुआ, रिस्क नहीं भी हुआ, तो भी आपको रिटर्न नहीं मिलेगा, ऐसा लिखा हुआ। However, in case of life insurance, policy amount will be paid on the expiry of the term. लेकिन प्रीमियम नहीं मिलता है, पॉलिसी का अमाउंट आपको पे किया जाता है, प्रीमियम कभी रिटर्न नहीं किया जाता आपको। प्रीमियम इज द अर्निंग ऑफ कंपनी, वो अपनी अर्निंग आपको क्यों देंगे? इज इट क्लियर? यस मैम। यस यस मैम। यस मैम। ठीक है, चलो, मतलब हमारे सारे प्रिंसिपल्स हो गए, 8 प्रिंसिपल्स थे और सारे प्रिंसिपल्स हमने कवर किया आज, ठीक है। आप एक बार रिवाइज करें और अगर फिर भी डाउट आता है तो हम कल वाले लेक्चर में या जब भी मेरा लेक्चर होगा हम तब डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। इज इट ओके?
Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. So shall I end the lecture? I mean, I will leave and make a co-host as Jyoti. Yes, ma'am. Jyoti, should I make you? Yes, ma'am. Okay. Bye everybody. Take care.